السلام علیکم ناظرین رس 9 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل۔ نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ آز بٹوت رامبنک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ پارٹی سینئر لیڈر ڈاکٹر سجاد شاہین تو ڈاکٹر شمشادہ شاہنس علاوہ دویم پارٹی لیڈر تو ورکر تہ موجود ات موقع پہ لوکو طرف کیا مسئلہ وتلاونہ آئی تتہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ لوکن یقین دتمت تین طرف وتلاونہ آمت مسئلہ سرکارس تام واتناونس حوالہ سنجیدہ قدم تلن یل زن ات موقع پہ ذرائع ابلاغ کن سوالن ہند جواب دیوان ڈاکٹر فاروق عبداللہ رامبن ضلع حوالہ کت کران وون ضلع مز لوکن تمام تر سہولیات آیتن تھونس حوالہ موجود سرکار طرف سنجیدہ قدم تلن یت زن تم وعدہ پورہ کرنے یم وعدہ پارٹی طرف انتخابن دوران لوکن ست کرنے آمد۔ قانونی ایک فیصلہ ہوا تھا پہلا جموں باہر بیٹھیں گے قائد ثانی صاحب سے یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ کتنی بربادی ہوئی ہے انسانوں کی، ہر چیز کو آپ دیکھ لیجیے، اپنے ہسپتال کو دیکھ لیجیے، اپنے اسکولوں کو دیکھ لیجیے، جن کو آپریٹ کر رہا تھا نہیں کیا گیا، بہت کام کر صاف پانی لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ابھی دیکھیے کلگام میں ایک گاؤں میں جانڈس شروع ہو گیا کیونکہ ان کو صاف پانی پینے کا نہیں ہے۔ یہ حالت ہماری ریاست کے کئی علاقوں میں سڑکوں کی حالت دیکھیے۔ اس حکومت کو اتنے کام کرنے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو نہ نیند آنی چاہیے نہ کبھی یہ سونے چاہیے، تب یہ ریاست اس مشکل سے نکل سکتی ہے۔ تو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے کیا مزید آپ کے آبجیکٹیوز اور کام رہے گا تاکہ عمر صاحب نے پہلے ہی ہفتے میں وزیر اعظم سے ملاقات کی، ہوم منسٹر سے ملاقات کی، ابھی کل وائس پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، آج پریزیڈنٹ آف انڈیا سے مل رہے ہیں، پاور منسٹر کی کانفرنس میں گئے کیونکہ پاور کی کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر سے ملنے والے ہیں کہ ہماری فائنینشیل سچویشن کو بھی دیکھا جائے۔ ہر طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی ریاست کی حالت کو ٹھیک کیا جائے۔ وہ تب ہوگا جب ہم سب مل کر، اس لیے حکومت پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے یہاں کام ہو تو ویسے کام ہو جو رہے، یہ نہیں کہ جہاں 40% سیمنٹ لگانا ہے وہاں 40% ریت ہے۔ اس چیز کو تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، سرکار ہر جگہ نہیں ہے، اور جو یہ باہر کے ٹھیکے ہیں ان کو بند کرنا ہے۔ سر بٹوت کیا ہمارے لوگ اتنے بیکار ہیں کہ وہ ٹھیکے نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں جو بھی ٹھیکیدار دیکھیے آپ، سب باہر سے ہیں، مزدور باہر سے ہیں، کہ ہمارے یہاں مزدور نہیں لگ سکتا۔ مجھے بتائیے کون سی چیز انہیں ان 10 سالوں میں ٹھیک کی ہے جس میں ہمارے لوگ یہ کہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں؟ سر بٹوت کے لوگ اس وقت منتظر ہیں سر، کیونکہ چنانی ناشی ٹنل ہماری جب سے بنی ہے تو بٹوت ایک سائیڈ لائن ہو گیا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بٹوت کے لوگوں نے سر بٹوت کا سب سے بڑے اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اس کا موسم بہت شاندار ہے، سر اس کو ہم نے اس کو ٹورزم میپ پہ لانا ہے، کیونکہ بٹوت ہی ایک جگہ ہے جہاں جو ٹریفک ہے وہ نکل جائے گا، مگر ہم چاہتے ہیں وہ ٹریفک یہاں آئے جو یہاں رہے، جو یہاں گرمیوں میں چھٹی منا سکے۔ یہاں برف ہوتی ہے آپ کے ہاں، تو اس کے بجائے کہ کشمیر برف دیکھنے آئے وہ یہاں۔ جموں کشمیر سرکار طرف یہ لوکن راحت واتنانس حوالہ لوکن ست کیا وعدہ کرنے آمت تت سرینگرس مز عمر سرکار طرف اخ نو دفتر قائم کرنا آمت یمیک افتتاح وزیر اعلیٰ سند صلاح کار ناصر اسلم وین آز کور، یل زن تمو ات موقع پہ وون عمر عبداللہ سن ذاتی رائے یہ دفتر قائم کرنچ یت زن عام لوکو یت پن مسئلہ سرکارس تام آسانی سان واتنوت ہیکن۔
ये उमर साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों के साथ रब्ता रखने के लिए कोई ऐसा मौजूद जगह हो जहां लोग कन्वीनियंटली आ सके, अपनी बात बोल सके। तो इस जगह का हमने दोबारा जो है इंतखाब किया। ये कन्वीनियंट है लोगों को आने के लिए, लोग आसानी से अंदर आ सकते हैं। यहाँ फुल फ्लेश अफसरान भी बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मुदस्सिर शामिरी साहब वो भी बैठेंगे, ताकि एक हमने इसका पहले होता था एक CM's रिडर्सल या ग्रीवेंस सेल होती थी, तो हमने वो उसको अब तब्दील करके एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये सिर्फ ग्रीवेंस की हद तक ना रहे, इसका रिडर्सल भी हो। तो इस दफ्तर को भी हम सोचते हैं कि इसका जैसे ये CM's पब्लिक रिलेशन कम आउटरीच सेल की तरह काम करे, ताकि लोगों की जो यहाँ मुश्किलात हो उनकी सुनवाई भी हो और उनका अजाला भी हो सके। ये फुल ऑफिस आवर्स में ऑफिस बिल्कुल फंक्शनल रहेगा। जिस दिन उमर साहब का यहाँ प्रोग्राम रहेगा उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। बाकी जितने हम साथी हैं हम सब यहाँ जो है एक रोस्टर के लिहाज से यहाँ बैठे रहेंगे। तो ऑफिसर तो बैठेंगे, CM का कब यहाँ पर बैठना होगा? वो भी जो उनकी जो हम देखेंगे जब वो अवेलेबल हो, कोई एक पूरा कैलेंडर के हिसाब से हम नोटिफाई करेंगे। ऑफिस तो फंक्शनल रहेगा, जरूरी नहीं है ग्रीवेंस ही हो, कभी आए कोई राब्ता भी करें, कोई अपनी सजेशन भी दें, हुकूमत उनकी अपनी है वो अपने सुझाव भी दें, अपनी जो एडवाइस दें उस पर भी हम चलें। हमेशा नहीं है कि सिर्फ शिकायत लेके आ जाएं। हजरत मीर सईद अली समनानी रहमतुल्लाह अलैह हुंद सालाना उर्स आज नहायत अकीदत एहतराम सान वादी मज मनावना आमुत तो कुलगाम कस्बस मज मौजूद तिहंदिस ज़ियारतस पे ये रात रातस शब खनी तो दरूद अज़कार चन मजलूसन हुंद सांस करना आव तज आज प्रेत नमाज पत तबरुकातन हिंद निशानदेही करना आमुत यह दौरान अत अकीदतमंदन हिंद बड़ी तादादन आज हाजिरी दिज ये जन इंतजामिया तरफ ज़ायरीन हिंद बापत माकूल इंतजाम ते करना आमद। नौजवानों अल्लाह तबारक व तआला करम का एहसान के टीम तो हज़रत सईद सिमनान अलैहि रहमा मुल्क कश्मीर में तशरीफ आन कोलगम यवन केस बोर्ड अफ सादत जा गुड कोलगम में सईद सिमनान अलैहि रहमा इस्लाम तलीम कोलगम अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला सुन बोर्ड करम का एहसान ये दो शुवारिया अजीम शान दो अल्लाह तबारक व तआला शुबान के फरमान कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन मैंने बंदा खुशूस में और बेपजी मैंने फजीर बंदन सिद्धन यह शैस अहकात के औलिया तिम अल्लाह तबारक व तआला सिंध नेक बंद यम अल्लाह तबारक व तआला यमन पान फरमावन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यम सजमेन तिम बंद यमन न का खौफ त गम त खतर यह खतर से मजलिस मनावन यथ मज दुरूद खानी नात खानी खत्म मजमात पढ़ने शाम पे हफ्तन तम पे रात भर उलमा किराम यथ मज तबलीग गई वाजो तबलीग नात खानी गई तिलावत कुरान गई नसीहत गई रात भर सारी सामीन यथ मज बुजुर्ग नौजवान हर आमद तबारक व तआला सल्लल्लाहु तारीफ बाज खतर यह सारी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सालाना उर्स मुबारक हज़रत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन समनानी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से मनाया जा रहा है। वादी भर के तमाम लोग अतराफ व अकनाफ से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। ज़ायरीन के लिए यहाँ पर जो लोकल औक़ाफ़ कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने तआम का माकूल इंतज़ाम रखा है यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पर बहुत अच्छे जो इनके हवाले से होते हैं ये इंतज़ामात जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों का भी। और यहाँ पर उर्स मुबारक का असल में तो एक ही पैगाम है, भाईचारा, अमन, इत्तेहाद, माए मोहब्बत, तरक्की, खुशहाली। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको इस अजीम रहमत के सदक़े से अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह दे। बाकी यही है उर्स मुबारक का असल में जो पैगाम होता है, चाहे वो खदमात के हवाले से है या दुआ वगैरह, तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ में यहाँ पर उनको शामिल रखा गया है। और ज़ायरीन का बहुत अच्छा तादाद यहाँ पर है और इंतजाम की कोई कमी नहीं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग डॉक्टर रक्सनान आज डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कन कईहन वार्डन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो मरीजन सहित कथ बात कर यल जन तिमो अत मौके पे वोन मेडिकल कॉलेज कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले संजीदा कदम तुलने
युद्ध जन और इन वालन वनीरन कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पेन डॉक्टर रक्सनान ये वोन जे हस्पतालस मज जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमालस मज अन्न तत तमो वोनमुत सरकार सत्य सलाह मशवर चलान कया जदीद टेस्ट तिम यम जन लूकन श्रीनगर गसन पेवान तो तिमन टेस्टन हिंद सहूलियत यथ हस्पतालस मज आयतन थवनस हवाले कदम तुलन सठा जरूरी युद्ध जन जिले कन लूकन कुन किस्मक मुश्किल वेतरन पेन ज़्यादा खुशी हमें इससे मिल रही है कि हमने विट्रेक्टमी का जो एक बड़ा सा इक्विपमेंट लाया हुआ है वो 1,25,00,000 का है। तो उस हिसाब से हम वो पेशेंट्स करते रहते हैं। पिछले 1-2 महीनों से हमने स्टार्ट किया है वो, ऑल्दो हमने वो भी इनॉग्रेट नहीं किया है फॉर्मली, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस कर रहे हैं। हफ्ते में 2-3 होते हैं वो केसेस हमारे। और जो ऑप्थेल्मोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो दिन को 15 से 16 इंट्राओक्यूलर लेंस डालते हैं, जैसे जिनको कैटरैक्ट सर्जरीज बोलते हैं। फिर लिड सर्जरीज करते हैं यहाँ पे, फिर कुछ जो स्किन की सर्जरीज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्थेल्मोलॉजी का कोई भी पेशेंट हमें कहीं रेफर नहीं करना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि हाई एंड सर्जरी जो किसी भी मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजी के डिपार्टमेंट में वो सारा होता है जी। तो आगे भी हम चाहते हैं कि थोड़ा और स्टाफ मिले और एडवांसमेंट हम करें। स्टाफ हम मंगवा रहे हैं, थोड़ा एडवांस स्टाफ आ रहा है, तो काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पेशेंट्स का ये है कि दिस इज अ न्यू मेडिकल कॉलेज, थोड़ा और टाइम लगेगा इसको एडवांसमेंट होने में। ये सिर्फ 5 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्टाफ यहाँ लाएंगे, हाई एंड इक्विपमेंट्स लाएंगे और अकाउंटेबिलिटी हर एक को होगी अपना काम करने के लिए। शुमाली हंद सोपरस मज रात शाम पत इंडस्ट्रियल इस्टेट इलाकस मज अकिस फैक्ट्री मज अचानक नार ज़ाहिर सपुद। यथ दौरान फैक्ट्री मुकम्मल पट खाकिस्तर सपज। तत मुतासिर ताजर अंजमन हिंदो जिम्मेदारों तरफ सरकार मांग करना आमज इंडस्ट्री इलाकन मज जरूरी खदमात मैसर थवनस हवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन यथन वाक़हन दौरान कम खुद कम नुकसान सपदे। किसी चीज़ का एस्टिमेट लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉस है अभी 2 बिल्डिंग्स का लॉस है, पूरी 2 बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी है। इसका देख रहे हैं आप, ऊपर वाला मंजिल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका छत नहीं दिख रहा है। तो जो बाकी यहाँ गुड्स वगैरह थे, हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट था, हमारा रॉ मटेरियल था, तो वो एस्टिमेट करके हम बता सकते हैं। अभी हमारे पास एज ऑन डेट कोई डेटा है नहीं जिससे हम एस्टिमेट। अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब जो नए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, पूरी वादी के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है उनके प्रेसिडेंट साहिबान की मीटिंग जो है हमारे फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर की सरबराही में, जो प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे है अभी, तो उनकी सरबराही में वो मिले थे। और उसमें और बातों के अलावा हमने ऑडिट मांगा है हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट का, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट। इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट में वो देखेंगे कि क्या क्या कमियां हैं यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि आज के हवाले से जो कमी हमें है, फायर जो हमारे हाइड्रेंट्स हमें होने चाहिए, पानी का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, सम्प होना चाहिए कि ऐसी वारदात अगर हो तो फायर ब्रिगेड आए तो उसको पानी भी मैसर मिले और हाइड्रेंट्स हर जगह लगे हों। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारा देरीना मुतालबा है कि हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक फायर ब्रिगेड का एक यूनिट होना चाहिए, जितना वो बड़ा हो उस हिसाब से। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खबर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगम सदस दफ्तर ब्रोकन आज ठेकेदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल ठेकेदार इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाजस में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमद ये पतम कई काल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बडगमस मज BDO तैनाती हज मंग करान, ताहम आज तम कह कदम तुलना आमद यम किन तम सड़कन पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल ठेकेदारों तरफ जिला इंतजामिया मंग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दुन युद्ध जन तमन बथिन वोल मुश्किल दूर करने। देखिए, हम डायरेक्टर साहब के पास 2 बार गए, चाहे फोन पे या ACP ACD जितने भी हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या जो भी हमारा डिविजनल ऑफिसर है डायरेक्टर साहब, तो वहां तक हम गए। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला, 2 ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास मौजूद है ऑर्डर। BDO रटसन को उन्होंने ऑर्डर निकाला
आप एडिशनल चार्ज ले लो बड़गाम ब्लॉक का, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद बीके पोरा का वीडियो है, उनको भी उन्होंने ऑर्डर निकाला, यहाँ पे एडिशनल चार्ज है, उसमें भी 7 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब आ रही है बातें आ रही कि वो आज दिन में ज्वाइन करेगा, देखते हैं शाम तक करेगा कि नहीं। लेकिन जो 1.5 महीने में डिले पेमेंट हुई है एमजी नरेगा की या जितने भी बिल पेंडिंग है, देखिए हमें बीडीओ ऑफिस से बिल लेनी है एई ऑफिस पे, उसमें एक लेटर होती है कवरिंग लेटर, उसमें कोई साइन नहीं करता है। हमें एक सीडीआर रिलीज करना है, जो जितने भी हमारे ठेकेदार है सबके पैसे फंसे हुए सीडीआर में, वो रिलीज करना है, उसके लिए हमें लेटर नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पे हेड ही नहीं है, देगा कौन। और एक इशू है हमारा, ये तो हो गया बीडीओ ऑफिस पे, जो हमारा आरडीडी है एग्जन जो है, अभी 4 महीने हो गए हमने टेंडर डाले हुए हैं इलेक्शन से पहले, तो मतलब इलेक्शन के बाद उसने टेंडर ओपन किया, अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, वो दे रहा है हमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसपे हम काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से हमें प्रेशर आ रहा है एईज की तरफ से कि आप काम स्टार्ट करो, लेकिन वो सरासर गलत है, हम काम उस पर स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमें प्रॉपर जो है अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। मंजूर अहमद डार, हम एक्चुअली ब्लॉक बड़गाम में काम कर रहे हैं, हम कंट्रैक्टर भी और मीड भी है, जिस तरह से हम वहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर सपोर्ट स्कीम चल रही है, नरेगा चल रहा है, SBM चल रहा है, बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रहा है। लेकिन बदकिस्मत की वजह से तकरीबन 3-4 महीने से वहाँ पे वीडियो नहीं है, पेमेंट डिले हो रहा है, नरेगा पेमेंट डिले हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है। वजह क्या है कि वीडियो बार बार ट्रांसफर हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। डायरेक्टर साहब ने 2 बार ऑर्डर निकाला है, वीडियो। अनंतनागस में आज ट्रेडर्स एसोसिएशन तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ सरकार मंग कर आई अनंतनाग कस्बस मज कायम सरकारी दफ्तर तो हस्पतालों मज गि कह दफ्तर कुछ दोयमी जाय मुंतकिल करने यून यम सत कस्बच रौनक खत्म सपदे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान खदशातन हंद इजहार करान वन आमुत कैंसन बदजनी करन वालें लूकन हंदिस वनस पे यह कदम तुलना आमुत यम किन ताजरन मज तशवीश पैदा सपद। खासकर जो सुनने में आया था कि शेरबाग का जो ये हॉस्पिटल है, ये कुछ शायद सुनने में आया कि शायद शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इस बारे में ट्रेड ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम किसी सूरत में इस हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट होने नहीं देंगे। हाँ, अगर उसमें कुछ कमी पीछे उधर कुछ राय ज्यादा है, गवर्नमेंट मजीद इसमें के लिए कुछ वसअत दे उसी जगह, या अगर कम पड़ रहा है तो दूसरी जगह कुछ नया हॉस्पिटल बना दे। लेकिन इस जिला से बाहर कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी दफ्तर, कोई भी ऑफिस, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल किसी सूरत में हम शिफ्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि मसला इसमें यह है कि इससे पहले भी बहुत से जितने भी दफातर थे हमारे टाउन से वो शिफ्ट करके दूसरी जगहों में इन्होंने काम किया है, जिसमें हमारे इस्लामाबाद की जो रौनक है वो कम पड़ रही है। अलमिया तो ये है, जो वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, वो तो अनंतनाग और दूसरा था, लेकिन आज यहाँ दर्जनों जिले बन गए, हम उससे खुश हैं। लेकिन हमारे से छीन कर उनको आबाद किया है, लेकिन जो पहले ही आबाद था उसको वैरानी की तरफ ये ले रहे हैं, इस पर कोई गौर खोज नहीं हो रहा है। इसी तरह आप देखिए कि हमारे जो रोड पहले ही छोटे थे, 20 फुट 25-30 फुट के थे, पता नहीं किस। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पुलवाम तरफ आज कस्बस मज खसूसी मुहिम शुरू करना आम, यथ मज कमेटी हंदो जिम्मेदारों त शिरकत कर। अत मौके पे ये तजारत पेश लुकन वन आव तम गन नाबालिग बचन मजूरी पे थवन, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यह मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी, युत जन बचन हज मजूरी पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का डायरेक्शन थी कि आपको चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, जो बच्चे वगैरह हैं या कोई बेगरी वगैरह कोई बच्चा करता है, कोई भीख वगैरह मांगने का है, तो हमें उसके लिए हमने ड्राइव की थी और ये असेस करने की कोशिश की थी कि कोई हमारे पुलवामा टाउन के अंदर ऐसा तो नहीं है कोई के ऐसे केसेस हैं या कोई कहीं किसी शॉपिंग कम्प्लेक्स में या किसी दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में कोई बच्चे काम कर रहे होंगे या कोई भीख वगैरह मांग रहे होंगे। तो हमने उस ज़मन में आज ये ड्राइव यहाँ पे पुलवामा टाउन में रखी थी। जी बिल्कुल, ये हमारा एक रूटीन काम हम इसको बनाएंगे और आगे भी हर वीक या हफ्ते में 2 दिन हम ये ड्राइव करेंगे। और जैसे कि आज आप हमारे साथ डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हमारी नोट्स में आ जाते हैं, जिसका चाइल्ड लेबर कहीं पे भी आइडेंटिफाई होता है, उसको रिहेबिलिटेट करके उसकी रिहेबिलिटेशन के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। और इस तरह का जो भी अमल है वो काबिल कबूल नहीं होगा और जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ऑन टाइम लेते हैं। फिलहाल अभी चाइल्ड लेबर में हमें कोई ऐसी
संबल बंडपुरिस में आज पुलिस तरफ थाना दिवस प्रोग्राम साज कर आमुत यथ पुलिस जिम्मेदारों तो मुकामी लूकों तरफ शिरकत करना आई अत मौके पे मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्राम हंद साज कर सत मनशियात तो दोयमन समाजी बुराइन पे रोट लागनस मज आसानी सपद तत पुलिस तो अवामस दरमियान रिश्ते मजबूत बनावनस मज मदद मिलन। देखिए, हम हर बार थाना दिवस में आते हैं और हम सोसाइटी की तरफ से अपनी बात रखते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि पुलिस की तरफ से हमें मदद मिलेगी तो हम अपनी तरफ से बात रखते हैं, आवाम की तरफ से बात रखते हैं। देखा जाए तो जब से ये थाना दिवस स्टार्ट हुआ है तब से बहुत ज़्यादा सुधार आया है और बहुत सारी चेंजेस हुई है। जहाँ पर हमें कहीं लग रहा था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, वहाँ उसमें सुधार आया। ड्रग्स के रिलेटेड बहुत अच्छा काम हो रहा है, ड्रग्स में बड़ा कदगन लग गया है। लोग बड़े खुश है पुलिस डिपार्टमेंट से, जो एक रिलेशन है वो मजबूत होती जा रही है, मजबूत होते हुए नजर आ रही है दिन ब दिन। पटन कस्बे से तोलुक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे कस्बस में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने सवाल कई फिर हुकामन मांग करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन आम लूकन हंद फेरुन तोरुन मुश्किल सपदमुत। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने सवाल गन कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। चूँकि हम यहाँ पटन मार्केट में यहाँ शॉपकीपर्स है तो हम ये चाहते हैं कि हुकाम का तवज्जो इस तरफ आए कि यहाँ पे जो ये गड्ढा पिछले 2-3 महीनों से बना हुआ है तो हम जहाँ तक हमसे हुआ है हम आला हुकाम तक गए हैं कि RNB वालों के पास गए हैं, हम म्यूनसिपलिटी वालों के पास गए हैं, हम सब उनके पास गए। हमारे प्रेसिडेंट ने भी उनसे गुजारिश की कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उनसे गुजारिश की कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसमें राह चलते बहुत से ये जो पैदल चलने वाले हैं वो इसमें जाते हैं तो ये जानलेवा मसला बन चुका है यहाँ पे। लेकिन कोई भी इस मसले की दाद रसी नहीं कर रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब हम जाए तो जाए किसके पास। तो जब हम यहाँ पे RNB वालों के पास जाते हैं जिनका ये काम है तो वो भी नहीं कर पाते हैं ये, और जब हम म्यूनसिपलिटी वालों के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि ये RNB वालों का काम है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी उनसे मोदिबाना गुजारिश की है, आम आवाम ने भी मोदिबाना गुजारिश की है। इस पे कोई भी अभी भी काम नहीं हो रहा है। तो हमारी नाज़रीन अचित वोत कौशर खबरनामा अंद यदि जिंदगी रूज पगह सब्द तह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।